Hello students. So we are going to start with chapter number 1, 10th CBSE. Name of the chapter is chemical reactions and equations, right? So what I'm going to do is I will read paragraph by paragraph and I'll explain it to you what is there in that paragraph, right? So keep a textbook in front of you and also keep a notebook in front of you. Okay, so whatever I'm writing on the board, whatever reactions, whatever things I may be writing on the board, I will tell you to write those things, and meanwhile you can simultaneously write it down. Okay, so you can, if you want to write it down, you can pause the video and you can write it down and again you can play the video, right? So we will start with the chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Okay, so consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at the room temperature during summers. An iron tawa, pan or nail is exposed to the humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food gets digested in our body. We respire. Right? So they have given some instances. So the very first thing is what? Milk is left at the room temperature during summers. What will happen? The milk will be spoiled. Second is an iron nail or any iron material is exposed to humid atmosphere. Slowly it will start rusting. Then grapes get fermented. Fermentation of the grapes leads to the formation of alcohol. Then food is cooked. Whenever food is cooked, whatever different bonds are there between the materials that are present in the foodstuff, those bonds are broken down, right? So what are those bonds? We will see later on. Food gets digested in our body. So food gets converted from complex form to the simple form, right? So that is the digestion of the food. We respire. Whenever we respire, whatever the food we eat, we get energy from that food. Okay, so that is respiration. In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to the question. Okay. So in all the above instances, that is mentioned, the initial nature of the substance changes. Whatever material was there, the nature of the material is going to change. So in such case, we say that a chemical reaction has occurred. But what exactly is chemical reaction? So that is what our aim is to learn in this chapter. Activity 1.1. Caution, this activity needs teacher's assistance. It would be better if student wear suitable eyeglasses, or you can maintain some distance. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in the watch glass as shown in the figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? Right? So what you have to do in activity 1.1, you have to take a magnesium ribbon. What you have to do? You have to take a magnesium ribbon, burn the magnesium ribbon. Burn the magnesium ribbon. Right? And after the burning of the magnesium ribbon, take the ash of the magnesium ribbon, collect it in a suitable plate or collect it in a watch glass, or you can collect it in the petri dish. While burning of the magnesium ribbon, keep it away from your face, right? While burning the magnesium ribbon,
Keep it away from your face. Let us see what happens when we burn the magnesium ribbon, right? Let us see what happens when we burn the magnesium ribbon, or how the magnesium ribbon is going to burn. Okay. You saw how the magnesium ribbon burns, or what happens when the magnesium ribbon is burning, and how we can collect the ash of the magnesium ribbon, right? Now next point, you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air, right? So whenever we are going to burn the magnesium ribbon, it burns with a bright flame. Magnesium, just now you saw, magnesium burns with a bright flame. Now if you want to burn anything, okay, if you want to burn anything, you will need oxygen. Am I right? You must have studied in junior classes. If you want to burn anything, you will need oxygen. There is no burning taking place in the absence of oxygen. So whenever the magnesium ribbon burns, whenever the magnesium ribbon is going to burn, it will combine with the oxygen which is present in the atmosphere. So magnesium plus oxygen, okay, it forms magnesium oxide. Magnesium plus oxygen, it forms what? Magnesium oxide, right? So the ash which is formed, the ash which is formed after burning of the magnesium, that is what? Magnesium oxide, right? Then activity 1.2, take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution. What do you observe, right? Then take few, we will see that what happens. Activity 1.3, take few granules, zinc granules in a conical flask or test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this zinc granules. Caution, handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or the test tube. Is there any change in the temperature, right? So in activity 1.2, what you have to do? You have to take lead nitrate solution and you have to add potassium iodide solution to the lead nitrate. That means you have to mix lead nitrate and potassium iodide solution. What happens in the lead nitrate and potassium iodide solution? We will see. Activity 1.3, what you have to do? You have to take few granules of the zinc and add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to the zinc granules, or you can take dilute sulfuric or hydrochloric acid and add zinc granules to it. You have to observe what is happening to the zinc granules, okay? You have to observe what is happening to the zinc granules. So from the above three activities, we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. So change in the state, change in the color, evolution of the gas, change in the temperature, right? So what is happening in the case of lead nitrate and potassium iodide solution? So whenever you are mixing lead nitrate and potassium iodide solution, so whenever you mix lead nitrate with potassium iodide solution, okay, whenever you mix lead nitrate with the potassium iodide solution, it is going to form a yellow color PPT, yellow color precipitate. It forms what? Yellow color precipitate. How it forms yellow color precipitate? Let us see. So you just now saw when we mix lead nitrate, okay, when we mix lead nitrate with potassium iodide solution, it is going to form yellow color precipitate. So in this first case, okay, in this first case, what is happening? Change in the nature,
change in nature or appearance. In the second case, change in color, right? Change in color. Whenever you drop zinc granules, whenever you drop zinc granules in uh, sulfuric acid or hydrochloric acid, you can see small bubbles, small bubbles of hydrogen gas rising from surface of zinc. Okay, you will see small bubbles rising from the surface of the zinc, right? So what did we observe? Change in the state, change in the color, right? uh, Evolution of the gas, right? Small bubbles of hydrogen gas rising from the surface of zinc, that means evolution of the gas. Again there is change in the temperature. Okay, there is what? Change in the temperature. This solution will slightly become hot. Okay, so as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction. So all this can be classified as chemical change or chemical reaction. Okay, we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter, right? Next point, chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in the oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. So whenever we write the reaction in a sentence form, so in this first case, what was happening? Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. In the second case, lead nitrate when mixed with potassium iodide, it gives us yellow color precipitate, right? So if you keep on writing the chemical reaction in the sentence form, if you keep writing the chemical reaction in the sentence form, it will become, every time if you try to write a chemical reaction, the reaction will become quite long. Now these are examples of very small reactions. Okay, ये जो है small reactions के example है. अगर हम बड़े reactions लिखने लग जाए, so if you start writing the bigger reaction, अगर हम बड़े reactions लिखने लग जाए तो क्या होगा? रिएक्शंस बहुत बड़े होने लगेंगे. द रिएक्शंस विल बिकम क्वाइट बिगर एंड बिगर. उसके वजह से फिर क्या होगा? इट विल बी नॉट सुटेबल टू राइट द रिएक्शन एवरी टाइम. हमें रिएक्शन लिखने में काफी दिक्कत होने लगेगी. सो इसके लिए फिर हमें क्या करना है? इसके लिए साइंटिस्ट ने जो है एक अलग रास्ता खोज के निकाला. क्या था वो रास्ता? चलो देखते हैं. The word equation of the above reaction would be magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. ठीक है? So the substance that undergoes chemical change in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction. It is a product. ठीक है? अब ये जो reaction हो रही है, in this reaction the substances which are undergoing the change, कौन से substances है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. तो ये जो है, मान लो इसे हम कहते हैं A, इसे हम कहेंगे B, राइट? A और B मिलके क्या बना? C. ठीक है, A और B मिलके क्या बना? C. तो यहाँ पे A और B जो है, these are known as reactants. ठीक है, A और B जो है, A and B are known as what? Reactants. यहाँ पे C जो है, यहाँ पे C is known as product. C जो है यहाँ पे, C को क्या कहा जाएगा? C को कहा जाएगा प्रोडक्ट. सेम रिएक्शन. ठीक है, देखो क्या था? लेड नाइट्राइड सॉल्यूशन, लेड नाइट्राइड मिक्स्ड विथ पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, लेड नाइट्राइड मिक्स्ड विथ पोटेशियम आयोडाइड. अब व्हाटएवर जो कोई बनेगा वो बनेगा. ठीक है, लेड नाइट्राइड को हम क्या कहेंगे? A, पोटेशियम आयोडाइड को हम कहेंगे B. यहाँ पे कुछ तो बनेगा, मान लो C प्लस D. तो A और B जो है, A और B उसे कहेंगे हम रिएक्टेंट. C और D जो है हम उसे कहेंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, या प्रोडक्ट
तीन भी बन सकते हैं। क्या होगा, एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, या फिर तीन प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। देर इज नो लिमिट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक भी बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, चार भी बन सकते हैं। देर इज नो लिमिट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन जितनी बड़ी होंगी, रिएक्टेंट्स जितने ज्यादा होंगे, उतने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। ठीक है। सो the substance that undergoes chemical change in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. The substance that is formed, the substance which is formed, that is magnesium oxide, it is a product. A word equation shows change of the reactants to products through an arrow placed between them. ठीक है। अब reactant to product, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द एरो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एरो। एरो जो है, एरो को तुम इक्वल्स टू साइन की तरह ट्रीट करोगे। एरो इज ट्रीटेड लाइक इक्वल्स टू साइन। ठीक है। सो एरो का जो लेफ्ट हैंड साइड है, एरो जो होता है, जिस भी डायरेक्शन में एरो है, अगर एरो जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पे, राइट, द एरो इज व्हाट, इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेंगे उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। एरो अगर इस डायरेक्शन में है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, सो उसके लेफ्ट में जो रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेंगे, हम उसे कहेंगे रिएक्टेंट्स। और एरो के जो राइट साइड में होंगे, एरो के जो राइट साइड में होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं मेरी बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? So on the left hand side of the arrow we have reactants, on the right hand side of the arrow we have products. You can treat the you can treat the arrow as an equals to sign. You can treat the arrow as an equals to sign. ठीक है। A word equation shows change of the reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus sign. ठीक है। अगर दो रिएक्टेंट्स है तो उसके बीच में प्लस आएगा, तीन रिएक्टेंट्स है तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसा आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, राइट। अगर ए के प्रोडक्ट है तो सिर्फ सी लिखेंगे, दो प्रोडक्ट है या फिर तीन प्रोडक्ट है तो सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरो हेड जो होगा हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ डायरेक्टेड होगा and shows the direction of the reaction. So reaction कौन से डायरेक्शन में जा रही है? Reaction is going from left hand side to the right hand side. ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है। ये कौन बता रहा है? ये एरो बता रहा है। ठीक है। Now writing a chemical reaction. Is there any other shorter way of representing the chemical reaction? ठीक है, राइट, मैंने पहले ही कहा कि अगर इस तरीके से हम रिएक्शंस लिखने लगेंगे so it will become quite a tedious job to write the chemical reaction. So we have to find out a shorter way. And what is that shorter way? Let us see. So is there any other shorter way for representing chemical reactions? Chemical equations can be made more concise. Concise मतलब छोटा. Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. ठीक है, वर्ड्स की जगह पे, ये जो वर्ड्स है ना, इस वर्ड्स की जगह पे हम केमिकल फॉर्मूला लिखने लग जाए। वर्ड्स जो है, वर्ड्स की जगह पे अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखने लग जाए तो हमारे रिएक्शंस जो है काफी कंसाइज और अंडरस्टैंडिंग के लिए सुटेबल हो गए। लेकिन अब ये केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, a chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as follows. ठीक है, so मान लो अब हमें क्या करना है, चलो I will rub this. ठीक है, सो अपनी रिएक्शंस क्या थी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम
ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट, राइट। तो मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है Mg, मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है Mg। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सिंबल है O, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सिंबल है O। लेकिन अपने हवा में जो आजू बाजू जो ऑक्सीजन होगा, वॉट एवर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, दैट इज प्रेजेंट इन द, नॉट इन द एटॉमिक फॉर्म, ये क्या है, ये एटम है, इट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म O2। द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ टू एटम्स, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल पता होगा, आई होप सो। सो molecule of the oxygen, it consists of two atoms, so the oxygen which is present around us, it is always in the form of O2, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला होगा MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा MgO। अब ये रिएक्शन करेक्ट है क्या, नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है, देखेंगे बाद में। बट अब हमने क्या किया, ये जो रिएक्शन को इतना टाइम लग रहा था और इतनी जगह लग रही थी, वी हैव सेव्ड द टाइम एज वेल एज वी आर सेविंग द स्पेस। टाइम और स्पेस दोनों की हमारी बचत हो रही है, एंड द रिएक्शन बिकम्स व्हाट, क्लीन, कॉम्पैक्ट एंड नीट। रिएक्शन बिकम्स व्हाट, क्लीन, कॉम्पैक्ट एंड नीट। सो कोई भी रिएक्टेंट्स अगर होंगे, कोई भी रिएक्टेंट्स होंगे, हम उसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी होगा उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंपल एक सिंगल एलिमेंट है तो एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंगल एलिमेंट है तो एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। ये क्या है, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट, बराबर है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एलिमेंट, बट ऑक्सीजन यहाँ पे जो यूज हो रहा है, द ऑक्सीजन विच इज बीइंग यूज्ड हियर, that is in the molecular form, so that is why we are going to write the molecular formula of oxygen, right। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट विल बी MgO, ठीक है। तो इस तरीके से जो है we are making the chemical equation short and concise, we are making what, chemical equation short and concise। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element same on the both sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for burning of magnesium in the air, ठीक है। अब क्या होगा, जब कभी भी तुम रिएक्शन लिखोगे, जब कभी भी तुम रिएक्शन लिखोगे, उस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं वो हम काउंट करेंगे, एंड राइट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है वो भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आर राइट हैंड साइड, ठीक है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS और राइट हैंड साइड शुड मैच। मैंने क्या कहा था, एरो शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स टू साइन। एरो को क्या करना है, हमें इक्वल्स टू साइन की तरह हमें ट्रीट करना है, ठीक है। अगर इक्वल्स टू साइन की तरह अगर हमें ट्रीट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें सेम करना होगा, ठीक है। सेम करना होगा मतलब क्या, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, ठीक है। अगर the number of atoms on left and right hand side are equal, then that reaction would be called as balanced equation, या फिर balanced chemical equation। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा balanced chemical equation। What is balanced chemical equation? Number of atoms same on right hand side and लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो वो
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। इफ द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स, if the number of atoms are not same on the both side, that will be called as skeletal chemical equation. Skeletal chemical equation मतलब क्या? number of atoms not equal on LHS and RHS, बराबर है। अब इस रिएक्शन को अगर हम कंसिडर करें, राइट, ये रिएक्शन जो है इसको कंसिडर करो, इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है क्या लेफ्ट और राइट हैंड साइड में? नहीं है ना। लेफ्ट में एक मैग्नीशियम है, राइट में एक मैग्नीशियम है, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है, राइट में एक ही ऑक्सीजन है। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बट रादर इट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ हाउ टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके पहले हम देखेंगे व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। Mass can neither be created nor it can be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इन द सेम वे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, ओके, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या होना चाहिए? उस केमिकल रिएक्शन में मास जो है ना, मास जो है एलिमेंट्स का, दैट शुड बी इक्वल। एलिमेंट्स का जो मास होता है इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, mass of elements on LHS, that is reactants, ठीक है, on LHS, that is the mass of reactants should be equal to the mass of elements on RHS, right hand side, which is products। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो है उनका मास सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स, रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स, उनका मास जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, उनका मास जो है सेम होना चाहिए। देन एंड देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलो। और वो मास सेम कब होगा? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, है ना। In other words, the number of atoms of each element remains same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. In the equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 जो थी उसमें क्या था? हमने क्या किया? एसिड जो है, एसिड के अंदर हमने ग्रैन्यूल्स डाले, बराबर है। कौन से ग्रैन्यूल्स? जिंक ग्रैन्यूल्स। प्लस कौन सा एसिड था? मान लो HCl, तुम्हारे बुक में उन्होंने H2SO4 दिया है, H2SO4 को स्किप करके मैं HCl लेता हूं। H2SO4 तो है, चलो दोनों लेते हैं, ठीक है। पहले H2SO4 को देखेंगे। तो जिंक, पहले उसे वर्ड्स में लिखेंगे, उसे क्या करेंगे हम? पहले वर्ड्स में लिखेंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा ही है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये सामने वाला जो ऐसा जो एरो आना चाहिए ना, उस एरो को मैंने यहाँ पे लिखा है। मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, बराबर है ना। द एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, द एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? जिंक प्लस
H2SO4 क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है दैट इज H, बट द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द नेचर अराउंड अस दैट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज H2। सेम इज द केस विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N, but the nitrogen gas which is present around us in the atmosphere, it is present in the molecular form that is N2। हाँ, ये बात याद रखना। अब क्या किया हमने? जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ हैंड, बोथ साइड्स। एक जिंक, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, बराबर है। दैट मीन्स द रिएक्शन इज व्हाट? बैलेंस्ड। बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए रिएक्शन जो है यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है, राइट? So let us examine the number of atoms of different atoms on both sides of the arrow, right? So examine करने के बाद हमें क्या मिला? On both sides the number of total number of atoms are same. So this reaction, the skeletal reaction, is actually the balanced reaction. As the number of atoms of each element same on the both sides of the arrow, it is a balanced reaction. Let us try to balance the following chemical equation. ठीक है, एक नया इक्वेशन उन्होंने दिया है। Let us try to balance that equation. ठीक है, क्या है वो इक्वेशन? चलो देखते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो क्लियरली द नंबर ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द हैंड्स आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, कैसे करनी है रिएक्शन बैलेंस्ड? देखो, टर्न द पेज, मूव टू द पेज नंबर 4। वहां पे उन्होंने दिया है, अलग अलग स्टेप्स उन्होंने दी हुई है। स्टेप नंबर 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. सबसे पहले हमें क्या करना है? We will have to draw the boxes. ठीक है, स्टेप नंबर 1। या फिर चलो ये छोड़ दो, ये रिएक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये रिएक्शन हमें दी हुई थी। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है? सेम रिएक्शन वी विल हैव टू राइट एंड वी विल हैव टू ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। Fe3O4 प्लस H2। समझ रहे हो बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में ड्रॉ द बॉक्सेस। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? कौन से एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कौन से एटम्स प्रेजेंट है और कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो उसका हमें एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले Fe उन्होंने क्या बोला है? रिएक्टेंट्स लिखो या फिर LHS लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और सेकंड क्या है? प्रोडक्ट्स लिखो या फिर RHS लिखो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है? एक। राइट हैंड साइड में कितने एटम्स है? 3। देन हाइड्रोजन, लेफ्ट में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, राइट में कितने हैं? अगेन 2 हाइड्रोजन। लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, बराबर है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3,
it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product in that compound. Select the element which has maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 on the left hand side. ठीक है, अब क्या करना है हमें? while balancing the reaction जब हमें बैलेंस करना है तो हमें ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. हमें ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट होंगे. सो दैट कंपाउंड मे बी इन द रिएक्टेंट साइड, वो कंपाउंड प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है. सो यहाँ पे अपना जो कंपाउंड है, चलो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, यहाँ पे अपना जो कंपाउंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट है? प्रोडक्ट साइड के Fe3O4 में. बराबर है, प्रोडक्ट साइड के Fe3O4 उसमें भी, ठीक है, मैक्सिमम नंबर किसमें प्रेजेंट? प्रोडक्ट साइड के Fe3O4 उसमें भी जो एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा होंगे, जो एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा होंगे पहले हमें उनको बैलेंस करना है. मतलब यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा कौन से है? यहाँ पे ऑक्सीजन. बराबर है, सबसे ज्यादा एटम्स यहाँ पे कौन से है? ऑक्सीजन के एटम्स है. बराबर है. सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ द साइड. समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सिलेक्ट सच कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है. वो कौन सा है? Fe3O4. डजंट मैटर वेदर इट इज ऑन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड. फिर उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स है, कौन से एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा है? उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा है, पहले उसको बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे. ठीक है, to balance the oxygen, so there are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 atom on the left hand side. To balance the oxygen atoms, ठीक है, to balance the oxygen atoms क्या करना पड़ेगा फिर हमें? यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4. बराबर है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4. ऑक्सीजन कहाँ पे? H2O. H2O में ऑक्सीजन है, राइट? कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ एक ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? एक्चुअली 4. ऑक्सीजन कितने चाहिए? 4. सो हमें क्या करना पड़ेगा? H2O जो है उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो Fe प्लस 4 टाइम्स H2O, Fe प्लस 4 टाइम्स H2O gives Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन. तो वहां पे उन्होंने दिया है, देखो, इनिशियल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, रिएक्टेंट में कितने हैं? 1, प्रोडक्ट में 4. सो टू बैलेंस क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट जो है वाटर, उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बैलेंस विदाउट चेंजिंग द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atoms we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4. ठीक है, हमें क्या करना है? ओरिजिनल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है. we will have to just change the coefficient. coefficient पता है? what is coefficient? quadratic equation पता है? 4x square plus 3x plus 1. तो यहाँ पे coefficient क्या है? 4. यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3. बराबर है. सो इन द सेम वे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा? ये यहाँ पे है कोएफिशिएंट 1. सो H2O का कोएफिशिएंट हमें कितना करना है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब उसको 4 का जो कोएफिशिएंट है उसके आगे 4 कोएफिशिएंट हमें लगा देना है, राइट? अब क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो हमारे बैलेंस हो गए. अगली स्टेप, स्टेप 4, Fe and hydrogen atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance the hydrogen atoms in the partly balanced equation. ठीक है, अब क्या बचा है? Fe and hydrogen. बराबर है, क्या बचा है? Fe and hydrogen. अगेन
क्या इसमें से बैलेंस करेंगे? जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं उसे हम बैलेंस करेंगे, राइट? सो Fe कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही करना चाहिए, बट गोइंग विद द फर्स्ट ट्रेंड, यहाँ पे जो ट्रेंड था उसको ही अगर हम देखें तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स है? ये ऐसा होता है, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, बराबर है। सो स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 4 इंटू 2 8। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है? सिर्फ 2। सो ये जो कोएफिशिएंट है 4 का, इसको यहां से इस हाइड्रोजन से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप नंबर 4, ठीक है, Fe plus 4 times H2O gives Fe3O4 plus 4 times hydrogen. ओके, Fe3O4 plus 4 times hydrogen. अब देखो, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुए क्या? ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन बैलेंस हुए क्या? हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब कौन बचा? फाइनली आयन, Fe इज लेफ्ट बिहाइंड, जिसको हमें बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे कितने Fe है? 3। यहाँ पे कितने Fe है? 1। तो क्या करेंगे? ये जो Fe है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो स्टेप नंबर कितना हो जाएगा वो? स्टेप नंबर 5, ठीक है, स्टेप नंबर 5, 3 टाइम्स Fe, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा तो लिख सकते हो, हाँ, तुम्हारे बुक में उन्होंने दिया है, बट आई एम नॉट राइटिंग दोस 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि तुम्हारे बुक में उन्होंने दिया है एटम्स ऑफ आयन ऐसा, हाँ। इफ यू वांट यू कैन मेक दिस एटम्स ऑफ आयन इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एंड सॉरी इन रिएक्टेंट्स, इनिशियल नीचे आएगा, इन रिएक्टेंट्स, इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स। इनिशियल, ठीक है, इनिशियल रिएक्टेंट में कितने थे? 1, प्रोडक्ट में कितने थे? 3, बराबर है ना? फाइनल क्या करेंगे? टू बैलेंस, ये हुआ इनिशियल, टू बैलेंस, टू बैलेंस क्या करेंगे? बैलेंस में 1/3 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्यों? इन प्रोडक्ट ऑलरेडी 3 थे ना, सो 3 के हमें रिएक्टेंट्स में 3 करने हैं, सो रिएक्टेंट में जो है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 टाइम्स Fe प्लस 4 टाइम्स H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2 हाइड्रोजन, बराबर है। अब लास्ट स्टेप बची हुई है, स्टेप नंबर 6, चेक द इक्वेशन एंड राइट द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है, चेक द इक्वेशन एंड राइट द करेक्ट इक्वेशन। सो 3Fe plus 4 times H2O gives Fe3O4 plus 4 times hydrogen. चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। You can check it for yourself whether the reaction is balanced or not. बराबर है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट? द रिएक्शन इज व्हाट? बैलेंस्ड। ओके, समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है? तो अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो पॉज कर लो, रिवाइंड करो और फिर से एक बार देख लो, ठीक है। आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। अब हमने जो पिछला रिएक्शन हमने की थी, सो 3 टाइम्स Fe प्लस 4 टाइम्स H2O, ठीक है, जस्ट अ मिनट, 3 टाइम्स Fe plus 4 times H2O gives Fe3O4
प्लस 4 टाइम्स H2 बराबर है। नाउ whenever we are writing the reaction, ठीक है, whenever we are writing the reaction we have to mention the physical states of the elements or the compound। उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट्स है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वी विल हैव टू मेंशन दैट फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट क्या है, आयन की सॉलिड। सो ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, S। ब्रैकेट में क्या लिखना है, सबस्क्रिप्ट में S। H2O जो है, पानी जो होता है लगभग लिक्विड स्टेट में होता है, बट यहाँ पे पानी जो है वेपर फॉर्म में है, मतलब गैसियस स्टेट में है। ठीक है, Fe3O4 जो है इट इज इन द सॉलिड स्टेट एंड हाइड्रोजन जो है हमें सबको पता है हाइड्रोजन इज इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, सो फाइनल रिएक्शन जब तुम लिखोगे तो उस रिएक्शन में ये जो स्टेट्स होती है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द स्टेट्स। ठीक है, द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन डज स्टेप नंबर 7 देखो वहां पे। सो द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 डज this equation tell us anything about the physical state of each of the reactant and product? No information has been given in this equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and the products are mentioned along with their chemical formulae, right? The gaseous, liquid, aqueous and solid states of the reactants or products are represented by the notation G for the gas, ब्रैकेट L for the liquid, ब्रैकेट AQ for aqueous। अगर पानी के अंदर कोई सॉल्यूशन बना है, ठीक है, पानी के अंदर कोई सॉल्यूशन बना है तो उसे हम लिखेंगे AQ, ब्रैकेट में उसे हम क्या लिखेंगे, AQ, aqueous, and S for solid respectively। The word AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water, right? So the balanced equation 1.9 will become like this। तो ऐसा जो है अपना इक्वेशन ऐसा बनेगा। ठीक है, नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। ठीक है, स्टीम या फिर वाटर वेपर के फॉर्म में हमने उसे यूज किया है। Usually physical states are not included in the chemical equation unless it is necessary to specify them। ठीक है, अगर नेसेसरी होगा तो ही फिजिकल स्टेट अगर हम लिखेंगे, अगर फिजिकल स्टेट नहीं लिखे तो रिएक्शन गलत है, ऐसा नहीं। अगर कहीं पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि फिजिकल स्टेट जो है मेंशन करो तो ही फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन विदाउट फिजिकल स्टेट भी लिखा तो भी रिएक्शन करेक्ट है, नो डाउट। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शन जो होती है उनके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सनलाइट, अगर या फिर रिएक्शन टेकिंग प्लेस लेट अस से एट 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमें रिएक्शन का कितना रखना है, 200 डिग्री सेल्सियस। अगर ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती है so you will have to write the specific condition। कैटेलिस्ट अगर रिएक्शन में हमने यूज किया है, what is catalyst, what is a catalyst, anything which alters the speed of the reaction, usually which increases the speed of reaction, हम उसे कहेंगे catalyst। so ऐसे कुछ specific condition है, catalyst है, so we will have to write it either above the arrow, अगर ज्यादा है above the arrow and below the arrow, दोनों साइड लिख सकते हैं। एक ही कंडीशन है तो above the arrow लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो एक रिएक्शन उन्होंने दी है, कौन सी है रिएक्शन, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोक्साइड कौन सी स्टेट में है, वो गैस, प्लस हाइड्रोजन ट्वाइस H2, वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। इट गिव्स अस व्हाट, इट गिव्स अस CH3OH, ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड। अगर इन दोनों की रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो हाई प्रेशर चाहिए, कौन सा, कितना प्रेशर, 340 एटमॉस्फेयर्स। कितना प्रेशर चाहिए, नॉर्मल अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, सो इसे कितना प्रेशर चाहिए, 340 टाइम्स मोर प्रेशर। तो ये हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि 340 एटमॉस्फेयर, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस पता है, प्लांट्स जो लेते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, उसकी रिएक्शन कैसी है,
6 times carbon dioxide plus 12 times H2O gives C6H12O6 plus 6 times oxygen प्लस 6 टाइम्स H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस स्टेट में है, पानी जो है लिक्विड स्टेट में है, राइट। ये जो है ये एक्वियस स्टेट में है मेरे हिसाब से, हाँ। ग्लूकोज जो है एक्वियस स्टेट में है, ऑक्सीजन इज अगेन इन द एक्वियस स्टेट एंड वाटर जो है लिक्विड स्टेट में, बराबर है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमें चाहिए सनलाइट, बराबर है। बिना सनलाइट के रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए सनलाइट, और इसके साथ में हमें एक कैटलिस्ट चाहिए। उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो कैटलिस्ट है इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द लीव्स। सो ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें हमें एरो के ऊपर और नीचे मेंशन करना जरूरी है। So using these steps you can balance equation 1.2 in the given text earlier। ठीक है, ये करके क्या तुम रिएक्शंस को बैलेंस्ड कर सकते हो क्या? हमने जो स्टार्टिंग में रिएक्शंस देखी थी, कैन यू बैलेंस दोज रिएक्शन? अगर कर सकते हो, स्टार्टिंग में 3 रिएक्शंस हमने देखी थी। इफ यू आर एबल टू बैलेंस दोज रिएक्शन, उसमें से जिंक और H2SO4 के तो हमने कर ली, लेकिन और जो दो स्टार्टिंग में दो रिएक्शंस देखी थी, उन दोनों को अगर तुम बैलेंस कर सकते हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है उसको बैलेंस कर सकते हो, और लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, इनके रिएक्शन को अगर तुम बैलेंस कर सकते हो तो बैलेंस करके देखो, दैट विल बी द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर राइट नाउ इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, बाय।